Good afternoon, class 7th. Today we will begin with second lesson of unit 2, which is say the right thing. ये स्टोरी एक प्ले के फॉर्म में लिखी है वेयर यू हैव सम कैरेक्टर्स जो अपनी डायलॉग बोलेंगे और आपको उन डायलॉग्स को इंटरप्रेट करके स्टोरी समझनी है. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. This is a humorous play in which a mother advises her daughter to say the right thing at the right time. However, when guests arrive, the daughter hilariously forgets her mother's guidance. Read the play to find out how she commits blunders and embarrasses the guest as well as her mother. तो ये play revolves around a girl Mary and her mother Mrs. Shaw. अब उसकी मदर उसे एडवाइस करती है, उसे बताती है टू से राइट थिंग्स एट राइट टाइम. सही चीज़ को सही वक्त पर बोलना, गेस्ट के सामने या दूसरों के सामने. लेकिन जब गेस्ट उसके घर पे आते हैं तब वो बहुत सारी मिस्टेक्स करती है, केयरलेस मिस्टेक्स करती है या ऐसी बात बोलती है जिससे गेस्ट ऑकवर्ड हो जाते हैं, गेस्ट अनकंफर्टेबल फील करते हैं. ठीक है? सो दिस इज़ अ ह्यूमरस प्ले विच रिवॉल्व्स अराउंड मैरी. शी इज़ वेरी टॉकटिव एंड अ क्यूरियस young girl, and her mother Mrs. Shaw, who is preparing for the visit of two important guests, which are Mrs. Harding, the wife of a wealthy man, and Mrs. Lee, his sister. Mrs. Shaw gives Mary careful instructions on how to behave politely and make a good impression. However, despite her mother's guidance, Mary ends up saying all wrong things, leading to series of awkward and funny situations. So, this play highlights importance of polite conversation and saying the right thing at the right time. Now let's start, children. Before starting, I want to explain you the meaning of the highlighted word. Hilariously means in a very funny way, and blunder means making mistake or careless mistake. Embarrass means making somebody awkward or uncomfortable. अब जैसा मैंने आपको बताया था प्ले में कैरेक्टर्स होते हैं, तो दीज आर दी कैरेक्टर्स चिल्ड्रन. Mary Shaw, a young girl, like I told you, she is a talkative and curious young girl. Mrs. Shaw, Mary's mother. Mrs. Harding, the wife of Mr. Harding, a wealthy man. Mrs. Lee, Mr. Harding's married sister. Alright, so Mrs. Harding is Mr. Harding's wife and Mrs. Lee is Mr. Harding's sister. So, Mrs. Harding and Mrs. Lee are guests. They are coming to Mrs. Shaw's house. Like you see in the picture, you can see in the picture, this is the girl Mary and this is her mother. She is advising her, she is guiding her to behave nicely, to say right things at right time when the guests arrive. Now this is the scene 1 of this play. Mrs. Shaw, the room looks cleaner now. Put the coat away in your bedroom. This room is in the place for coats. Now Mrs. Shaw was preparing for the guest. वो आ रहे थे तो she was cleaning the house and wants everything to look neat and clean before the guest arrive. तो उन्होंने पूरा रूम क्लीन कर दिया था और फिर वो मैरी से कहती है इस कोट को ले जाके अपने बेडरूम में रखो. इस रूम में कोट नहीं रखा जाता बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पे आप अपने कोट को रखो. Mrs. Harding and Mrs. Lee will soon be here and they don't want to see that. क्योंकि हमारे गेस्ट आने ही वाले होंगे और ये मेस वो देखना नहीं चाहेंगे. मेरी, यू ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे. अब मेरी थोड़ा सा अनॉयड हो जाती है. शी गेट्स इरिटेटेड बिकॉज उसकी मम्मी उसको काम बता रही होती हैं. मिसेस शॉ, येस आई एम. यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस. Now Mrs. Shaw says that हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ to
कीप द कोट अवे बिकॉज तुम अपने सारे कपड़े पूरे घर में फैला देती हो. मेरी, आई एम नॉट अ चाइल्ड. मिसेस शॉ, नो यू आर नॉट, सो प्लीज़ कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम. मेरी फिर अनॉयड हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ. मिसेस शॉ कहती है येस यू आर नॉट अ किड, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग टू कीप योर थिंग्स इन योर रूम. मेरी, वाई आर those two women coming here? Who's Mrs. Harding? Now, here you see the curious nature of Mary. Now, she is curious. She wants to know who are the guests who are coming to her house and who's Mrs. Harding. Mrs. Shaw. She is the wife of a wealthy man, Mr. Harding. He had just bought a big house in Landfield. They lived in London before. She's coming to have a talk. I met her in a shop and asked her to come. Now, Mrs. Shaw tells Mary that Mrs. Harding is Mr. Harding's wife, जो कि लंदन से आए हैं लैंडफील्ड में रहने. उन्होंने एक वहाँ पे बहुत बड़ा सा घर लिया है, तो वो उनसे वहाँ पे उनके घर बातें करने आ रही है. उन्होंने उन्हें कब मिसेस शॉ ने मिसेस हार्डिंग को कब इनवाइट किया? जब वो उन्हें शॉप में मिली. तो शी जस्ट इनवाइटेड मिसेस हार्डिंग टू कम ओवर. Mary, oh, I've seen her children. They often come along the road. Who's Mrs. Lee? Now, अब मैरी ऐसा प्रिटेंड करती है हाँ हाँ मैं उनको जानती हूँ, मैंने उनके बच्चों को देखा है. अब वो दूसरा क्वेश्चन पूछती है अब ये मिसेस ली कौन है? She is Mr. Harding's sister. She had been staying with them for a while. Now, Mrs. Shaw says that वो उसको इन्फॉर्मेशन देती है दैट मिसेस ली इज़ मिस्टर हार्डिंग्स मैरिड सिस्टर. उनकी शादी हो चुकी है और वो मिस्टर हार्डिंग की बहन है. What are you going to talk? Now Mary again, she is curious. She wants to know that what are they going to talk? I don't know. All kind of things. One day you'll have to go some of these houses yourself and talk to people there. Now Mrs. Shaw says that she don't know what they are going to talk. हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें. And she tells Mary कि तुम्हें भी एक दिन हो सकता है ऐसा करना पड़े. तो यहाँ पे मिसेस शॉ को सिखा रही हैं सोशल बनने की या सोशल कॉन्वर्सेशन के बारे में कि तुम्हें भी एक दिन ऐसे ही जाके लोगों से मिलना पड़ेगा, थोड़ा सोशल होना पड़ेगा, है ना. बिकॉज सोशल कॉन्वर्सेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल Mary needs to learn when she grows up. Mary, I can talk now. I've been able to talk for a long. अब मेरी कहती है मुझे तो बात करनी आती है क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से बातें कर रही हूँ. Mrs. Shaw, yes, that's true. You always talk too much, but does anyone wants to hear the things that you say? Now Mrs. Shaw says that yes, I know that you talk. You know how to talk. But क्या तुम्हें लोग सुनना पसंद करते हैं? क्या तुम्हारी चीज़ें लोग सुनना चाहेंगे? Mary, I can talk very well when I like. I'll stay with you today and talk to them when they come. Now Mary says that she wants to stay and talk to the guest. वो अपनी मम्मी से कहती है मुझे बातें करना जब मुझे पसंद होता है तब अच्छा लगता है, और आज तो मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और मैं जो गेस्ट आ रहे हैं उनसे बात करना चाहती हूँ. ओह, आई डोंट थिंक सो. यू कांट गो आउट फॉर अ वॉक. आई विल बी बेटर इफ़ यू डोंट. It will be better if you don't. Now, Mrs. Shaw is little bit hesitant. वो कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें गेस्ट के सामने बैठना चाहिए, तुम इंस्टेड वॉक करने चली जाना, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा. Mary, why? Mrs. Shaw, if you stay with me, you may not say the right thing. Mary inquires कि why you are sending me for a walk when I want to talk to them. एंड मिसेस शॉ सेज दैट मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ सही चीज़ उनके सामने बोलोगी. मेरी, आई नो द राइट थिंग टू से. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, एंड थिंग्स लाइक दैट. लेट मी से टुडे. आई कैन डू इट वेरी वेल. आई विल शो यू. एनी वन कैन टॉक. नाउ मेरी स्टार्ट showing that how she knows that she can talk. Because she knows how to greet people, how to say good afternoon, how to ask how they are, things like that. So let me stay today. She requests that please let me stay here today. I can do very well. I'll show you. Anyone can talk. Mrs. Shaw, you may stay if you like, but take care. I want to know Mrs. Harding well.
I don't want her to ask me to go to their house. I want her to ask me to go to their house. Now Mrs. Shaw says that अच्छे से behave करना उनके सामने. You can stay but you have to behave properly. You have to take care. Because that is Mrs. Shaw wants to know all the things about Mrs. Hardings, and one day she wants to go to her house. There isn't much to do in Landfield, and I want to know some more people. I want some more friends here. So take care when you say anything. And she continues by saying that यहाँ पे बहुत लोग, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को है नहीं लैंडफील्ड में, इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों को जानना है, मुझे बहुत सारे दोस्त बनाने हैं. सो बी केयरफुल. मैरी, टेल मी व्हाट टू से. नाउ मैरी आस्क्स फॉर गाइडेंस, कि मुझे बताओ कि मुझे क्या कहना है उनके सामने. मिसेस शॉ, I can't tell you everything, but you always be right. If you are kind to people, say things that will please them. Now, Mrs. Shaw says that मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, बस ये याद रखो, लोगों से अच्छी तरीके से बिहेव करो. बी काइंड टू देम. एंड उनको ऐसी चीज़ें बोलो जो उन्हें अच्छी लगे, उन्हें प्लीज़ करे. देन दे लाइक यू, लाफ अ लॉट एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू. फिर वो लोग तुम्हें पसंद करेंगे. अगर तुम उनके साथ काइंड रहोगे, उनको प्लीज़ करोगे, तो दे विल लाइक यू एंड देन दे विल लाफ विद यू. एंड इफ़ एवरी वन स्टॉप टॉकिंग, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन. अगर फिर साइलेंस हो जाता है, अगर सब बातें करते करते एकदम से साइलेंस हो जाता है, तब फिर से तुम कुछ बोल देना. दे डोंट वॉन्ट टू सिट हियर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग. थिंक ऑफ समथिंग टू से. क्योंकि वो जो लोग आए हैं, जो गेस्ट हमारे यहाँ आएंगे, वो फ्लोर देखने या वॉल देखने या सीलिंग देखने नहीं आएंगे, वो यहाँ बातें करने आए हैं. तो तुम कुछ सोच के कह देना. दिस इज़ ऑल द एडवाइस विच इज़ गिवन बाय हर मदर. To be kind, to say right thing, and when everybody goes silence, say something to make them laugh, to make them speak again. You know, Mary, I can do that. There's always something to say. Must I do anything else? Now, Mary is confident that she can do whatever she can do what her mother told her to do. और फिर वो उनसे पूछती, is there anything else? और भी कुछ है? Mrs. Shaw, when they are ready to leave, don't jump out of your chair and look gladly at the door. You must look sorry when they want to leave. Now she again tells Mary that जब कोई आपके घर से जाना चाहे, तो आप बिल्कुल एकदम से अपनी चेयर से जंप करके डोर की तरफ मत देखने लगो. ये बहुत रूड लगता है. ऐसा दिखाओ that you are sad that they are leaving. You are feeling sorry that they are leaving. You don't want them to go so fast. Mary, what shall I do when they want to go? Mrs. Shaw, ask them to stay a little while longer. Just say, must you go? Can't you stay? Or something like that. You like them and you want them to stay, and you must let them understand that. Now Mary says that अगर वो जाना चाहते हैं तो मैं तो उन्हें जाने दूंगी ना. बट मिसेस शॉ सेज दैट तुम कुछ ऐसा बोल देना, तुम ऐसा बोलना उनको कि उन्हें लगे कि तुम चाहती हो कि वो रुकें यहाँ पे, और तुम्हें ये बात उनको समझानी है. दैट यू वॉन्ट देम टू स्टे, यू डोंट वॉन्ट देम टू गो सो अर्ली. मेरी, दैट्स नॉट वेरी हार्ड, इज इट? आई रिमेंबर दैट. मस्ट यू गो? कांट यू स्टे? Must you go? Can't you stay? Now Mary starts remembering all the things that her mother told. She find it easy. Now Mrs. Shaw, that's right. Now take your coat to your room and change into a clean dress. You must look nice when they come, and if everyone stop talking, say something kind to make them talk again, and don't say anything that would make them angry. Now Mrs. Shaw says that ठीक है, चलो तुम्हें समझ में आ गया. Now go and dress nicely. एंड यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम. तुम्हें प्रॉपरली ड्रेस होना चाहिए. जब तुम्हारे गेस्ट घर आते हैं तो यू शुड ड्रेस प्रॉपरली, यू शुड लुक गुड, है ना. एंड इफ़ ऑल ऑफ देम, अगेन शी रिमाइंड्स मेरी दैट इफ ऑल ऑफ देम स्टॉप टॉकिंग, यू मस्ट से समथिंग विच मेक देम टॉक अगेन. मेरी, आई विल रिमेंबर. आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स दैन दिस. मेरी सेज कि ठीक है, मैं इसको याद रखूँगी क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें की हैं. तो अभी तक यू हैव सीन दैट हर मदर इज़ गिविंग हर एडवाइस. मदर उसकी एडवाइस दे रही हैं हाउ यू शुड मीट एंड ग्रीट पीपल व्हेन दे कम टू योर हाउस. एंड
मैरी इज़ कॉन्फिडेंट दैट कि वो अब उन लोगों से अच्छे से बात कर लेगी, उनसे अच्छे से मिलेगी. Let us discuss question you will get later in this video towards the end. Now this is the scene 2. Scene 1 ends. Scene 1 में आपने क्या पढ़ा? Scene 1 में दो characters थे, which is Mary and Mrs. Shaw. Mrs. Mary, she was preparing the house. वो घर को साफ़ सुथरा कर रही थी क्योंकि गेस्ट आने वाले थे. और मैरी जो थी वो बहुत क्यूरियस थी, वो उसको बहुत जानने की जिज्ञासा थी कि कौन आ रहा है उसके घर और क्यों आ रहा है, और अगर वो आ भी रहा है तो क्या बिजनेस है उनका, क्या बातें करेंगे वो लोग. और वो चाहती थी कि वो भी वहाँ पे बैठे और उन लोगों से बातें करें. तो उसकी मदर उसको हेल्प करती हैं, उसको गाइड करती हैं कि हाउ सेइंग राइट थिंग एट राइट टाइम इन फ्रंट ऑफ गेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. So this is the scene 1. Now let's begin with scene 2 when the guests arrive. Mrs. Shaw. So you like Lanfield, Mrs. Harding? I'm very glad. Mrs. Shaw ask Mrs. Lanfield. अब conversation शुरू करती हैं, कहती हैं कि क्या आपको Lanfield पसंद है? Now Mrs. Harding. Yes, we like it very much. It's not the same as London, but there are some very nice people here and we've found a good house. No one says anything more and Mrs. Shaw looks at Mary. Now Mrs. Harding replies to Mrs. Shaw that हाँ उनको पसंद आया, यहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं और उन्हें बहुत अच्छा घर मिल गया है. फिर उसके बाद सब चुप हो जाते हैं एंड Mrs. Harding मैरी की तरफ देखती हैं. Mary, what beautiful children you have. Mrs. Harding, I've often seen them walking along the road. Now Mary starts the conversation क्योंकि सब चुप हो गए थे and her mother told her to say something and make them talk again. तो मैरी बोलती है कि मुझे आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं लगे. ठीक है. मिसेस हार्डिंग, ओह आई हैवंट एनी चिल्ड्रन. मिसेस हार्डिंग सेज मेरे तो बच्चे ही नहीं हैं. सो हियर एक ऑकवर्ड मूवमेंट बन जाता है क्योंकि मिसेस हार्डिंग के बच्चे नहीं होते और मैरी क्या बोलती है कि उनके बच्चे बहुत सुंदर हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और वो उन्हें हमेशा वॉक करते हुए देखती है. मैरी, ओह येस यू हैव, आई हैव सीन देम, अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल. नाउ मैरी अगेन सेज नो, आपके बच्चे हैं, यू हैव अ बॉय एंड अ गर्ल. मिसेस हार्डिंग, I have no children, believe me. Now Mrs. Harding was little uncomfortable. She was not pleased क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे और Mary was saying no that you have children. Mary, oh Mrs. Shaw quietly, they must be someone else's children. Have you met Mr. Best? He is a nice man. He lives near you. Now Mrs. Shaw समझ जाती हैं that Mrs. Harding is feeling awkward. So वो conversation दूसरी तरफ लेके जाती हैं और वो कहती हैं कि क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिली, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वो हमारे पास में ही रहते हैं. मैरी, ओह मिस्टर बेस्ट, ही लिव्स हियर एंड ही वर्क्स इन लंडन. ही गोज़ ऑल द वे टू लंडन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड देन ही कम्स ऑल अलोंग द वे बैक बाय ट्रेन एवरी नाइट. He lives in trains. She laughs. What kind of life is that? Why do people do things like that? They do not know how to live. And he reads 2 newspapers in the train every day. He never reads a book, but he is only a banker and bankers can't think. Now Mrs. Shaw tried to fix the situation by changing the topic, by asking Mrs. Harding about Mr. Best. But Mary here, she again says something which is not good. She criticizes Mr. Best for living a dull life. क्योंकि उनकी जॉब क्या है, वो हमेशा सुबह से यहाँ से लंदन जाते हैं ट्रेन से और रात में वापस आते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत डल है. वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, वो बुक्स नहीं पढ़ते है ना. तो शी क्रिटिसाइजेज हिज रीडिंग न्यूज़पेपर्स ओनली टू फाइंड दैट मिस्टर ली, my brother's banker. He goes to London by train every morning and comes back every night. He reads 2 newspapers in the train in the morning and another every night. Now, अब वो मिस्टर बेस्ट को क्रिटिसाइज़ करती है कि वो एक बैंकर है, उनकी लाइफ बहुत डल है, वो बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनकी लाइफ तो पूरी ट्रेन में ही बीतती है. नाउ मिसेस ली ऑफेंड हो जाती हैं. वो कहती हैं मेरे ब्रदर भी बैंकर हैं,
He also goes to London by train every morning and come बैक एवरी नाइट, और हर रात को ट्रेन से ही वापस आते हैं. वो जाते वक्त न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आते वक्त न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. नाउ मेरी, ओह आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नो. Now Mary feels that she has said something which is not right and she apologizes. She says, sorry, I don't know. मुझे नहीं पता था. Mrs. Shaw, bankers always have to read a lot of newspapers. Do you know Mr. Beast? She's a nice, Mrs. Beast, she's a nice woman. I like her. Now again, Mrs. Shaw tries to fix the situation by saying that bankers को newspaper पढ़ना बहुत important है. फिर वो Mrs. Beast के बारे में पूछने लगती हैं और कहती हैं कि दैट शी इज़ अ नाइस वूमन एंड शी लाइक्स हर. मेरी, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स? शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट. शी लाव्स. मेरी फिर से गलत बात बोलती है, उनको मॉक करती है. मिसेस बीस्ट को कहती है कि ब्लू ड्रेस के ऊपर रेड कोट कौन पहनता है, उनका ड्रेस सेंस कैसा है. Mrs. Harding, I have a blue dress and I often put on my red coat at the same time. Mrs. Harding's also dressed like that. She says that I also dress like that. I have a blue dress and I often wear red coat over it. So she has similar dress sense as or fashion sense as Mrs. Best. Mrs. Shaw, quickly, I like blue dress and red coat. No one says anything. Mrs. Shaw फिर से मेरी को सही करने की कोशिश करती हैं या उस टॉपिक से डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं कि मुझे तो ब्लू ड्रेस बहुत पसंद है एंड रेड कोट ऑल्सो. नाउ एवरी वन इज साइलेंट. मेरी, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून. I met her in the street. No one sees her in the morning because she always stays in bed then. And she is always asking the doctor to go to see her. I can't understand women who stay in bed in the morning and why must she always ask for doctor. I've never been to a doctor in my life. Now, Mary, again she criticizes Mrs. Cotter for staying in bed for too long and calling the doctor very frequently, only to offend Mrs. Harding. है ना. Now, फिर से वो ये बात बोल देती है कि मिसेस कॉटर तो दिन भर बेड पे रहती हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली डॉक्टर्स को बुलाती हैं. मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में डॉक्टर को नहीं देखा. मिसेस हार्डिंग, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ. नाउ अगेन मिसेस हार्डिंग वॉज ऑफेंडेड. शी ऑल्सो स्टेड इन बेड लाइक मिसेस कॉटर. मिसेस ली, I often go to doctor. Now Mrs. Lee was also offended. She did not feel nice because she also goes to doctor often. Mary, oh, I'm sorry. No one speaks. Now Mary is again sorry. Mrs. Shaw, do you know Mrs. Grantley? She is one of my best friend. But she's so talkative. Talkative women aren't very interesting, aren't they? Mrs. Shaw, now she keep on trying to fix the situation, but Mary was making it worse and worse, है ना, by criticizing or mocking other people. अब मिसेस शॉ मिसेस ग्रांटली के बारे में बात करती हैं और कहती है कि वो तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हैं. वो मेरी फिर आके बीच में बोलती है कि वो बहुत टॉकेटिव हैं. टॉकेटिव वुमेन तो इंटरेस्टिंग नहीं होती. मिसेस ली, माई मदर्स अ टॉकेटिव वुमेन. मिसेस ली कहती है मेरी भी मदर टॉकेटिव है. मेरी, ओ आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नो. Mary, oh, look out of the window. Oh, there's the dog again. It's always look very dirty. I don't like dog. Do you? Who want a dog? Who wants a dog? That dog's always near our house. Why do people keep dogs? Who wants a dog? Why doesn't its owner keep it clean? Have you seen it? Mrs. Harding, looking out of the window. Yes, I've seen it. That's Twizzler. Now, अब मेरी जो होती है फिर वो विंडो के पास आती है और कहती है कि देखो वो डॉग फिर से आ गया, कितना डर्टी है वो डॉग. मुझे डॉग्स तो बिल्कुल नहीं पसंद हैं. किसको डॉग चाहिए? ये हमेशा मेरे घर के पास में घूमता रहता है. अब लोग डॉग्स रखते ही क्यों हैं जब वो उनको क्लीन नहीं कर पाते? क्या आपने इस डॉग को देखा है? नाउ मिसेस हार्डिंग, वो भी विंडो से बाहर देखती है, कहती हाँ मैंने देखा है. दैट्स टाउज़र. वो टाउज़र है. इट्स आर डॉग. वो मेरा डॉग है.
अब यहाँ पे देखो कितनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो गई। वो डॉग किसका था? मिसेस हार्डिंग का। मैरी को नहीं पता था कि उसे क्या बोलना चाहिए और किस समय पर बोलना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हुई। मैरी विद अ रेड फेस, ओ आई डिड नॉट नो, नो वन स्पीक्स। अब मैरी का फेस बिल्कुल रेड हो गया था। शी वॉज ऑल्सो फीलिंग बैड, शी वॉज ऑल्सो ऑकवर्ड कि मैंने ये क्या बोल दिया। मैरी स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, देयर इज मिस्टर Pomeroy on his horse. He is always talking about horses. He rides a horse every day and practices shooting. Why must he do that? What have they done to Mr. Pomeroy? Why do some men like horse more than they like people? It's hard to understand men. Mary, she goes on criticizing people. Now she स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग पॉम्बरे कि वो हॉर्स राइड करते रहते हैं, वो हमेशा हॉर्स के बारे में बात करते रहते हैं, हर दिन हॉर्स राइड करते हैं और शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? वो मेन को समझना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। Mrs. Lee, my brother practices shooting when he has the time and he rides his horse when he can. He sold his house in London and bought a house here because he wanted to ride and practice shooting. Now, Mrs. Lee, शी वॉज ऑफेंडेड, शी फेल्ट बैड कि उन्होंने कहा कि मेरे भी ब्रदर को शूटिंग पसंद है और हॉर्स राइडिंग पसंद है। इनफैक्ट उन्होंने लंदन में अपना घर सोल्ड इसीलिए किया ताकि वो यहाँ आकर शूटिंग और हॉर्स राइडिंग कर सकें। मिसेस हार्डिंग लुकिंग एट मिस्टर ली, इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट, वी मस्ट गो नाउ। मिसेस शॉ, इट हैज़ बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक। शी लुक्स एट मैरी। नाउ मिसेस हार्डिंग सेज दैट इट इज़ गेटिंग लेट, अब बहुत देर हो रही है। नाउ दे वॉन्ट टू गो। उनको बहुत अच्छा लगा ये सब बातें करके। मिसेज ली, वेरी नाइस, शी लुक्स एट मैरी, और दोनों मैरी की तरफ देखते हैं ये बोलते बोलते। मिसेज शॉ, इट्स वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। नाउ मिसेज शॉ, शी वॉज बींग सोशल, शी वॉज बींग पोलाइट। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि वो उनसे मिलने आई और शी वॉन्ट्स देम टू स्टे अ लिटिल लॉन्गर, वो चाहती है कि वो थोड़ी और देर रुकें। मैरी अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, अब मैरी अभी भी नहीं सही बात बोल पा रही थी। ओ मस्ट यू स्टे, कांट यू गो। उसने उल्टा बोल दिया, जो उसकी मम्मा ने उसको सिखाया था उसका उल्टा बोल दिया कि यहाँ पे क्यों रुक रहे हो, जाओ तुम लोग। ना इट वॉज अ हिलेरियस मिक्सअप ऑफ लाइन, उसने लाइन को ही उल्टा बोल दिया जिससे उसकी मीनिंग चेंज हो गई। सो दिस इज अ प्ले रिटन बाय G.C. Thornley. This play shows the importance of tactful communication and politeness and thinking before speaking. तो ये प्ले से आपको क्या समझ में आता है कि हमें अपनी कॉन्वर्सेशन को सोच समझ के कम्युनिकेट करना चाहिए, अपने थॉट्स को, अपनी कॉन्वर्सेशन को पोलाइट रखना चाहिए। ठीक है, बोलने से पहले सोचना चाहिए। So here's your story ends. Now let's begin with the question and answers. Children, this is let us discuss one of scene 1. Children, let us discuss scene 2, rectify the false statement. इसका मतलब है you have been given false statement. अब इस statement को आपको rectify करना है, आपको mistake को find out करना है and सही आंसर लिखना है।
सो हियर्स योर एक्सरसाइजेज एंड चिल्ड्रन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइजेज समझ में आ गई होंगी. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, you all can ask me in the comment section. Thank you children, have a good day.